leadership. We have the some people have been there, just like Steve Jobs, who is the founder and the former CEO of Apple, who have give the innovative ideas with their employees and the work thin different. And today we have iPad, iPhone, iMac, different types of product has been there. So basically this innovation this part has been there. So on this phase and on this part, we will learn more from our guest, Professor R.K. Dobeji. Okay, now I will give mic to the Dobe sir. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Thank you. So now we can start. Yes, sir. Yeah. Thank you very much for inviting on the wonderful topic and the prestigious college of AMT Group, AMT College of Management. So, respected Director AMT College, Professor Monica Rastogi ma'am, and Dr. Sudhakaran, Dr. Sailesh Tripathi, Dr. Prashant Mavi, and all the faculty members and my loving students and other participants, ladies and gentlemen. It's really a nice and am I audible, Sudhakaran sir? Yes, sir. Yes, sir. Your voice is audible and clear. Yeah. So it's really a very interesting topic, especially in New World Order, after LPG and 90 decades, and after 2010, the topic of innovation and the entrepreneurship, including startups. It's really a global trends in the development scenario, or urban as well as the rural belt across the globe. So innovation, first we should all think about like what is innovation and what is the innovation leadership. The word leadership is not new, and innovation is also not new for anyone. I hope so. So, but the thing is कि innovation and innovation leadership को हम आज के डेट में especially Indian context में कैसे देखने की कोशिश करते हैं? In theoretical perspective, so many school of thoughts, which is talking about the innovation and innovation leadership. But innovative ideas are the more and less you can say that it's a property of Indian ethos, and Indian ethos is also talking about कि जब भारत जैसे देश में जहाँ पे सदियों से एक नई इनोवेशंस एंड innovation की लीडरशिप की एक पुरानी परंपरा, a old traditions, and then you can also say that it's like a old tradition in India especially. अभी कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारी जो आज की सरकार है, जो प्रेजेंट सिनेरियो, और ऑनरेबल एंड विजनरी प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi ji has started so many innovative ideas and started so many programs like the Atmanirbhar Bharat, Ayushman Bharat, and MEMS में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जो innovation and innovative. In fact, the IIC banner is also and a good example for the innovative ideas and leadership of our current Prime Minister. Innovative leadership की जहां तक बात करें तो ये वास्तव में भारत में कोई नई बात नहीं रही है, इसकी पुरानी परंपरा रही है, और हर समाज तो उसी रूप में अपने आप को आगे बढ़ा पाता है जहां की इनोवेटिव लीडरशिप या इनोवेशन की लीडरशिप स्ट्रांग हो, और स्ट्रांगनेस इस मामले में वो बढ़े ताकि उसको पूरी तरह से हम सब तक पहुंचा सकें. लॉ कॉलेज है एंड आई होप कि मैक्सिमम लॉ के ही स्टूडेंट्स होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, मैं अंदाजा कर पा रहा हूँ, एंड फैकल्टी मेंबर्स भी होंगे. तो आप देखने की कोशिश करें कि इनोवेटिव लीडरशिप का और इनोवेशन में लीडरशिप को देखें अगर हम, तो इसमें एक बड़ी आम सी बात है, ग्रास रूट एग्जाम्पल वी कैन टेक एज है कि लीडरशिप को हमेशा ग्रास रूट जो तृणमूल स्तरीय जनता जिसे आम आदमी हम कहते हैं ना आम भाषा में, वो
इसको इनोवेशन के आधार पे ही तय किया गया था। साइकोलॉजिकल सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ द फ्रायड and the political participation theory of Noam Chomsky is also defined the leadership should always be innovative, क्योंकि हम लीडर उसी को मानते हैं जो इनोवेटिव होता है। But nowadays the term innovative leadership is normally used for leaders, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इनोवेशन में लीडरशिप की जरूरत आज के समय में भारत को, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अपने आप में एक इनोवेशन और इनोवेटिव लीडरशिप की एग्जांपल है, जो देश को, जो समाज को, जो अपने लोगों को, और इंडियन एथॉस की एक बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी है जिसे हम आम भाषा में कहते हैं देश काल परिस्थिति। तो देश काल परिस्थिति के अनुरूप से अगर आप किसी चीज को इनोवेट करके, कुछ नया करके, कुछ नया चीज खोज कर उसको आगे बढ़ाने की जब हम कोशिश करते हैं तो ये एक अच्छा एग्जांपल होता है इनोवेटिव लीडरशिप का। पंचायती राज आर्टिकल 73 एंड 74, पंचायती राज एंड ओवरऑल पीआरआई इंस्टीट्यूशन जिसमें नगर पालिकाएं भी थी, कॉर्पोरेशन, इन सबको अगर देखें तो एक नए तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड द क्लासिफिकेशन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लेजिटिमेसी एंड हेजेमनी इंक्लूडिंग द सुपरमेशी को लेकर तय किया गया था। और ये एक तरह से एक इनोवेटिव आइडिया था जो कि भारत के लिए बहुत सही साबित हुआ आज की डेट में। हालांकि कुछ इसके एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसमें ये माना जाता है आमतौर पे कि ये चीजें वास्तव में उतनी अलग से नहीं बन पाई। कई सारे इसके प्रधानी के चुनाव में हिंसा को लेकर, बाहुबल के प्रयोग को लेकर, मनी मैंडेट को लेकर की गई। इस दृष्टि से देखें तो वास्तव में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज फ्लॉप दिखेंगे। बट आई एम सॉरी, शायद इलेक्ट्रिसिटी ओके, सो इस रूप में अगर देखने की कोशिश करें तो बहुत सारे आइडियाज फ्लॉप दिखते हैं। बट ओवरऑल वी शुड फर्स्ट थिंक अबाउट लाइक कि हम लोग क्या वास्तव में सिर्फ वही देखना चाह रहे हैं जो देख रहे हैं? क्या फ्राइड की वो थियरी एक आम आदमी के माइंडसेट पे उतना हो चुका है जो इनोवेशन को हमेशा क्रिटिसिज्म के एंगल से देखने की कोशिश कर रहा है? जिस सोसाइटी में कल तक कोई पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं था, ग्रासरूट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म होता जा रहा था, वैसी स्थिति में अगर कहीं पर चुनाव हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे एक लंबे समय के बाद जब भी कोई सोसाइटी अपने आप को इनोवेटिव पाथ पर लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, इनोवेटिव डायरेक्शन में लेकर चलता है, इनोवेटिव लीडरशिप जब आपकी विजनरी पॉइंट्स एंड स्कीम्स एंड पॉलिसीज के साथ जब आती हैं तो उनके साथ बहुत सारी चीजें शुरुआत में गड़बड़ी होती हैं। तो पीआरआई इंस्टीट्यूशंस में जितनी भी चीजें ऐसी होती हुई दिख रही हैं वो निश्चित तौर पे सिर्फ इसके उदाहरण हो सकते हैं कि शुरुआती दौर में ऐसी कुछ गड़बड़ियां छोटी मोटी होती हैं। आत्मनिर्भर भारत के जहां तक बात देखें, ये आत्मनिर्भर भारत भारत के सबसे बड़े सनातन मूल्यों में से एक रहा है। इंडियन एथॉस इसके बारे में भारत की लोक मंगल की कामना जो रही है वो अपने आप में इनोवेशन और इनोवेटिव को लेकर रही है। क्रिटिसिज्म एंड द सिस्टम शुड बी रिफॉर्म्ड को लेकर हमेशा से चलता रहा है। ये वे समाज रहा है, स्पेशली इंडियन सोसाइटी को अगर हम देखें तो ये वो समाज है जो कि समय के साथ साथ हमेशा अपने आप में परिवर्तन करता रहा है। इंडिया दैट इज भारत, द लाइन फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपने आप में जो नाम का डिफिनेशन अभी तक जो लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है और जैसे आता है कि भारत से इस देश का नाम भारत पड़ा, शांतनु से लेकर अभी तक की परंपरा है। ये इनोवेशन नहीं तो और क्या है कि यहाँ पर शासन का इनोवेशन इससे बेहतरीन उदाहरण क्या हो सकता है कि योग्यता के आधार पर उस राजवंशीय, उस मोनार्क सिस्टम में जहाँ पे राजा का बेटा राजा होता था, लेकिन फॉर द विजन एंड द राज्य, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक और इन द इंटरेस्ट ऑफ एम्पायर और द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट के लिए भारत को राजा बनाया गया और इस रूप में उन्हें एक शक्ति प्रदान की। तो राजवंशीय परंपरा को ये इट्स अ टाइप ऑफ इनोवेशन इन डीप सेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी एंड द सोशल साइंसेस। आयुष्मान भारत अभी भारत सरकार की एक बड़ी अच्छी, नरेंद्र मोदी स्टार्टेड सो मेनी प्रोग्राम्स like for example you can say Ayushman Bharat. It's a new innovation in the health sector
of the common people and the common man of India. आम आदमी जो कि स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए कभी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ देखता था, कभी महाजनों की तरफ लोन के लिए देखता था, कभी बैंकों से उधार के लिए देखता था, और इस तरह की व्यवस्थाएं थी। सरकारी अस्पतालों में जो नॉर्मली आम बोलचाल में हम सब जानते हैं और कहते रहते हैं कि कोई सुविधाएं नहीं, ऐसी स्थिति में प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की हिम्मत नहीं होती है, अच्छे अच्छों की बजट बिगड़ जाती है। ऐसे में कुछ ऐसी योजनाएं आई जिन्होंने एक नए इनोवेशन और नए सेक्टर्स को जन्म दिया। स्टार्टअप्स एंड इंटरप्रेन्योरशिप, आप याद करिए जब कोविड 2020 में आया हमारे यहाँ, एक नई बीमारी, एक नया महामारी, जिसमें शत्रु न देख सकते थे न जान सकते थे, बस यूं ही सब परेशान थे। किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा उसको कि इट्स अ बायोलॉजिकल वॉरफेयर और समथिंग लाइक, इट्स अनदर डिबेट, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। टेक्नोलॉजी की ग्राउंड हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं था। टच स्क्रीन फोन, लाल बटन और हरा बटन के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। एंड एक साल के अंदर इनोवेशन की स्थिति हमारे यहाँ ये रही कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स हमने क्रिएट किए, अपने आइडियाज डेवलप किए, अपनी सुविधाओं के अनुसार से यूजर फ्रेंडली बनाया, उनको एक इनोवेटिव पाथ पर लेकर गए। इसके अलावा अगर और देखने की कोशिश करें तो ये वो दौर था जब लग रहा था कि पूरा समाज बिल्कुल से मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में ये समाज फिर से उठ के खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। ऐसी स्थिति में एक और जो मैंने पहले एग्जांपल दिया आयुष्मान भारत का, आयुष्मान भारत अपने आप में एक बेहतरीन उदाहरण है हमारे इनोवेटिव लीडरशिप का जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें आप देख सकते हैं जो आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में आता है, जहां पे रूरल इंडिया और साथ ही साथ आपकी अर्बन इंडिया के लिए भी चीजें सामने आई, एंड वो सामने ही नहीं आई, उनके लिए जो सुझाव दिए गए, जो व्यवस्था की गई, वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में और गुड रिजल्ट के फाइंडर्स के रूप में सामने बढ़ी। इनोवेटिव लीडरशिप को लेकर भारत के लगभग पुराने समय से थोड़ा सा अगर और हम पीछे जाकर देखने की कोशिश करें तो फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू मॉडर्न टाइम इनोवेटिव आइडियाज हमारे सोसाइटी को और भारत के ही संदर्भ में नहीं, पूरी दुनिया या मानो ये फुल फ्रॉम अर्लियर पीरियड जब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थियरी चार्ल्स डार्विन लेकर आते हैं, जब हमारी उपनिषदों में ये बात कही जाती है, और वहां से लेकर अभी तक की यात्राओं में हमने सारी चीजें देखी। हम ये लोग हैं जो सर्जिकल मास्क के लिए हाहाकार मची थी, और इसी इनोवेटिव लीडरशिप ने आज पूरी दुनिया को मास्क और पीपीटी किट सप्लाई करना शुरू कराया गया। ये इनोवेटिव लीडरशिप में स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ये स्थिति पैदा किया कि हम कपड़े के मास्क और गमछी तौलिया मुंह पे रखते थे, आज हमारे सबके पास N95 मास्क अवेलेबल हो रहे हैं। ये उसी इनोवेटिव लीडरशिप का है कि स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने पूरे देश में इतनी तेज गति से चीजों को आगे बढ़ाया। रूरल डेवलपमेंट में अगर हम देखें इसको तो तमाम ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं जहां पे 1973 एंड 74th अमेंडमेंट के बियॉन्ड बहुत सारी ऐसी चीजें आई। आरटीआई का आना अपने आप में एक इनोवेटिव लीडरशिप था। इसके बाद रोड सेफ्टी को लेकर, रोड बेस को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन एंड स्कूल पॉलिसी एंड द बेस्ट एंड द मोस्ट वाइब्रेंट एग्जांपल ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो खैर भारत ने बहुत सारी पाई, बट आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो करंट में चल रहा है, इस सिलेबस को अगर आप देखें तो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी वाइब्रेंट एग्जांपल फॉर द इनोवेटिव लीडरशिप, जहां पर आपके लोगों को अपनी जमीन, अपनी जरूरत, अपनी समझ के साथ पढ़ने पढ़ाने की सुविधाएं दी गई। इनोवेटिव लीडरशिप के अलावा अगर आप देखें तो अपनी जरूरतों से पिछले दिनों आपके IMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने
कई सारे ऐसे इक्विपमेंट का इजाद किया जिसमें ब्रेथ मशीन से लेकर एयर मशीन से लेकर तमाम ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए गए एमटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के द्वारा। इट्स अ टाइप ऑफ इनोवेशन लीडरशिप और विजनरी सिस्टम। इसके साथ ही साथ आप अगर भारत की स्वतंत्रता के बाद के आंदोलनों में देखें तो कई सारे हमारे साइंटिस्ट ने डिफेंस फील्ड से लेकर अलग अलग जगहों पर इनोवेटिव करके भारत को एक आत्म सशक्त बनाया, और इन सबके सिरमौर में आत्मनिर्भर भारत की योजना एक इनोवेटिव लीडरशिप का सबसे बेहतरीन उदाहरण। इनोवेटिव लीडरशिप किसी भी सोसाइटी के साइकोलॉजिकल सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टिकल या मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के रूप में देख सकते हैं। कुछ दिनों पहले तक कानून व्यवस्था में ये बड़ा मुश्किल होता था कि आखिर कौन किस पे सुधार दे, कौन किस पे सुझाव दे, कौन कहाँ पे किसको बताए। हालांकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने शुरुआती दिनों में सुमोटो का जो राइट दिया था और जिस रूप में न्यायपालिका को शक्ति दी गई थी, बाद में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस का एक जो दौर शुरू हुआ और इसके बाद न्यायालयों में कुछ स्कूल ऑफ थॉट, इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स के बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो ये कहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस ने पीआईएल के थ्रू कोर्ट्स का लोड बढ़ा, कोर्ट पे भार बढ़े, केसेस की संख्या बढ़ गई। लेकिन अगर वास्तव में देखें तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए बहुत सही हद तक, बहुत आगे तक लेके गई, जहां कल तक लोग समझते नहीं थे कि आखिर किसका मुकदमा किस मुद्दे पे कौन लड़ने जाए, कौन फाइल करे, किस रूप में करे। बट सुप्रीम कोर्ट ने और इंडियन लीगल सिस्टम ने अपने आप को एक नए इनोवेटिव रास्ता में लेके सबको ये अधिकार दिया, इस रूप में बनाया कि लोग अपने आप को किसी के लिए मोहताज होने की जरूरत नहीं रही। अब अपने से आप खुद को लेकर जाकर कुछ चीजें कर सकते हैं। इनोवेशन में इनोवेशन लीडरशिप की अगर जहाँ और थोड़ी सी और विस्तार से देखने की कोशिश करें तो इनोवेटिव लीडरशिप में मीडिया का अपना एक खास रोल रहा है। वो शुरुआत के दौर भारत में जो सिनेमा का शुरुआत होता है, अपने में बेस्ट एग्जांपल था जब भारत में पहली बार मूक बधिर सिनेमा बनता है, राजा हरिश्चंद्र आता है, और उसके बाद से आते 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 आज के सिनेमा के दौर को देखिए, जहां आवाज, जहां का फिल्मांकन अपने आप में एक उदाहरण बनता हुआ जा रहा है हर चीज के लिए, हर मामले में। जर्नलिज्म एज ए प्रोफेशन एंड legal practices in the legal study in his own profession, academy and profession, both side is innovative in itself. ये अपने आप में एक इनोवेटिव लीडरशिप का क्वालिटी रखता है शुरू से। इसमें कहीं से कहीं भी आप ये नहीं देख सकते कि इनमें अगर लीडरशिप, इनकी लीडरशिप शुरू से इनोवेटिव रही है, क्योंकि सोसाइटी को एक सही दिशा में लेके जाना जहां लोक मंगल की कामना हो। क्योंकि इनोवेटिव लीडरशिप सिर्फ ये नहीं है कि आप मंगल पर जाकर जीवन ढूंढें, बल्कि इनोवेटिव लीडरशिप की सबसे पहली जरूरत इंडियन एथिक्स के अनुसार से ये होती है कि वह जीवन में मंगल ढूंढे। क्योंकि मंगल पर जीवन ढूंढना एक अलग इनोवेशन है, लेकिन जीवन में मंगल ढूंढना इट्स अ डिफरेंट। So we also try to do for the innovative leadership in our society, because आप मंगल पर जीवन ढूंढें, ये अलग कहानी हो सकती है, समाज के लिए मंगलकारी हो सकती है, लेकिन समाज में मंगल की कामना करना, ये लोक मंगल की अवधारणा पूरा इंडियन फोक कल्चर और इंडियन लोकल कल्चर और रीजनल कल्चर अपने आप में शुरू से इतना इनोवेटिव रहा है कि समाज को यहाँ तक ढोकर लाता गया। हमारे इनोवेशन की कमी रही कि गांधीयन फिलॉसफी एंड गांधीयन थॉट्स, जो पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने एक नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आए कि स्वच्छ भारत मिशन, देखने में बड़ा सामान्य सा था, सफाई हम सबकी जरूरत थी, हम सब गाहे बगाहे इस पे चर्चा करते रहते थे, लेकिन इस पे काम नहीं हो पाया। इस आइडिया के आने के बाद हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Your voice is audible. या एनी प्रॉब्लम सर? No. ओके। सो सफाई स्वच्छ भारत, स्वच्छता का जो अभियान हमने स्वच्छ भारत अभियान से जो शुरू किया,
ये अपने आप में एक इनोवेटिव आइडिया रहा। गांधी इसको लेकर, आप सबको शायद याद होगा, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि 1914 से पहले जब गांधी 1902 के आसपास पहली बार, 1901 या 2 की मीटिंग में जब पहली बार आए थे भारत, और कांग्रेस की मीटिंग में मुंबई में जब वो शामिल हुए, तो उन्होंने अकेले अपनी पूरी सफाई व्यवस्था वहां पर कराई थी, अकेले पूरी सफाई की जिम्मेवारी उठाई थी। ये वो भारत था जहां पर स्वच्छता की इतनी बड़ी बात थी, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी खत्म हो गई। धीरे धीरे चीजें खत्म होती गई और हम गंदगी के अंबार में अपने आप को तब्दील करते गए। इस इनोवेटिव आइडिया, एक केवल स्वच्छता के आने के बाद से आपको सैकड़ों ऐसे, हजारों की संख्या में भारत में ऐसे स्टार्टअप्स एंड बहुत सारी ऐसी चीजें शुरू हुई जो सफाई के साथ साथ वो वेस्ट चीज को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, वेस्ट आइटम्स को, कचरे को, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, उन कचरों से हमारे लिए बहुत सारी चीजें ऐसी तैयार होने लगी जिन्होंने समाज को एक नया रूप दिया और बहुत सारी समस्याओं से निजात हुआ। वो कचरा जो कल तक उठाकर फेंक दिया जाता था, आज उससे छांट कर प्रोडक्ट्स बनाए जाने लगे। ये इनोवेशंस और ये इनोवेटिव आइडिया लीडरशिप का एक सुंदर एग्जाम्पल हो सकता है हमारे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, कंटेम्प्रेरी नेशनल पॉलिसीज में। एजुकेशन पॉलिसी की जो मैं बात कर रहा था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने आपको भाषा के आधार पर जो स्वतंत्रताएं दी हैं, या जिस तरह से लोगों को पढ़ने की जो समस्याएं पहले हुआ करती थी, हमारी पीढ़ी तक जो समस्याएं, या आज जो अभी आने वाली पीढ़ी है, इन सब ने जो समस्याएं झेली हैं, उन सब से एक तरह से मुक्ति मिलने वाली है, जिसके लिए गांधी वर्षों तक कहते चले गए कि त्रिभाषा सूत्र होना चाहिए। वो आजादी आपको मिलने वाली है। लॉ पढ़ने वाला कुछ और पढ़ने के लिए हमेशा सोचता था, लेकिन उसके लिए मुहैया नहीं होता था। जर्नलिज्म पढ़ने वाले के लिए उसके अलावा, उस डिसिप्लिन के अलावा और कुछ पढ़ने की गुंजाइश नहीं हुआ करती थी। साइंस पढ़ने वाले के लिए लिटरेचर या कोई और सोशल साइंस का सब्जेक्ट, अगर उसका इंटरेस्ट भी हो, उसके क्लास भी अटेंड करना चाहे, जाना चाहे, सब्जेक्ट में डिग्री लेना चाहे, असंभव। आज ये सारी चीजें मुमकिन है। और ये जो मुमकिन हुई है चीज, ये हमारे इनोवेशन और इनोवेटिव लीडरशिप की एक बेस्ट एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं। क्योंकि इनोवेशन और इनोवेटिव लीडरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ करें और सोसाइटी उससे जुड़ नहीं पाए, बल्कि बेहतर ये होता है कि आप करें। Hello, hello. Uh, हाँ जी। Rakesh Hello. sir. Now your voice is audible. Somebody was muted me. Anyway, so how much time I have now, Mr. Sudhakar? अभी आपके पास है सर टाइम, आप कर सकते हैं कंटिन्यू, अभी है टाइम आपके। Yeah, actually I have to go for a meeting with director, so in next 10 minutes, can I bend up? Okay sir, 10 to Is 15 it- minutes you can. Yeah. 10 Is to it 15 convenient? minutes. Oh, Yes, 15 minutes you are, yes sir. so, thank you. I think 10 minutes I will conclude, and then few minutes for the question. If anybody have any doubt and any question, so we'll discuss on Okay this sir. topic. Yeah. Okay So next few minutes I will bind up, and then for the open floor. Is it okay, sir? Yes sir. Yeah. Thank you, sir. So the thing is कि इनोवेटिव आइडियाज किसी भी सोसाइटी को उसके फिलोसफिकल साइकोलॉजिकल लेवल को एक बूस्टअप देता है, वो उस लेवल पे लेकर जाने की कोशिश करता है। इवन यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ आफ्टर मंडल द 3M theory, मंडल मार्केट एंड M क्यूब और ट्रिपल M theory, मंदिर मंडल एंड मार्केट। ये 90 के डिकेट्स के वे टर्निंग पॉइंट्स हैं जिन्होंने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और इंडियन सोसाइटी को पूरे की तरह से बदल कर रख दिया, अपने आप को एक नई आइडियाज में लाकर रखने की कोशिश की। ये तीनों थियरीज, मंदिर फॉर राम जन्मभूमि एंड द अयोध्या रथ यात्रा बाय लाल कृष्ण आडवाणी,
Mandal commissions for the reservation and the market for liberalization, LPG, liberalization, privatization, and globalization. The liberal economy is introduced in Indian political system, Indian government. और पहली बार हमने टाई अप किया WTO and World Bank से, and then we started some regulations, or we are starting to make our regulations and the policies, economic and financial policies according to the guidance of WTO and the World Bank and other international, global or international institutions. ये टर्निंग पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट था कि इसने समाज को एक नए रूप में और नए तरह से देखने की कोशिश की, और ये वो टर्निंग पॉइंट्स थे जिन्होंने भारत को एक नया रूप Hello, Rakesh sir. Hello. Hello, Dubey sir. Okay, you have joined it, sir. Yeah, thank you. Perhaps it's a little bit boring. Somebody removed me. Okay, anyway. So, innovative leadership, there is so many examples in contemporary world as well as in our historical background from starting to till now. Atmanirbhar Bharat, Ayushman Bharat, others, so many examples, national education policy. So we have lots of example about the leadership. So I think somebody is hello. Hello. Yes, sir. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Your Yeah. voice is audible, sir. Okay, thank you, sir. I think somebody is continuously muting and disabling the camera and all the things. So these are the few things which we can I share with all of you. If any question and doubt from your side. Hello. Yes, sir. So, am I audible now, Dr. Sudhakaran? Yes, sir. You are audible, sir. So this is the scenario about the global leadership and all the things. So now the floor is open for the questions. I think somebody have any students and any other person have any doubt and the queries of the question. Okay, after
Students, the floor is open. If you having anybody having the any doubt, any point on the leadership, you can carry out. So what I think that this Rakesh sir has trying to give the concept of leadership in the innovative way. He has given the reference of the this one journalism also, or maybe in the field of litigation also. The scenario has been changed. The this innovative leadership has been there. The quality has to be there with the phase of the new experiment, or if a person is willingness to create the adaptness, so that part also has been carried out. So this leadership has been there. This one uh, new things has been there in the leadership. You have to be just members has to be make it. The members or the followers should follow the leaders. They have to do it. So this our chief, our guest has explained the concept of this leadership in the better way, in the proper manner. So we have just did the session. Thank you very much. Students, please mute your mic. Uh, so this part has been complete there, and this one has been Rakesh sir has given the wonderful examples how the leadership can be saved, and how this part has to be carried out, and this has to be done very well. And apart from this, this leadership scenario has been changed with the different phase of time, from the ancient to the medieval periods, and this factor will lead to the new innovations, thought, ideas. This one after new ventures. This part has to be done it, and this has to be there. If any student having a query, they can ask about the leadership lectures. So this has been done, and this has to be there. Student, if you have any query, you can ask to our guest. Hello. Okay, Arun. Yes. What is your point? सर माय डाउट इज दैट सर व्हाट आई सर मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ सर अगर लीडरशिप में है सर हमारे जो लीडरशिप में जो टीम होती है सर उस टीम में जो रहती है उसमें हमें कैसे बिहेव करना चाहिए और कलीग के साथ अरुण जी सर हाँ इनोवेटिव लीडरशिप की जो टीम है आपकी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि हमें कैसे कलीग से बिहेवियर करना चाहिए। देखिए इनोवेटिव लीडरशिप में ये जो लीडरशिप की जो टीम है उसमें आपको कोई बिहेवियर के लिए अलग से कोई मैनुअल लाने की जरूरत नहीं है। जो नॉर्मल टीम के मैनुअल्स होते हैं एंड लीडरशिप की सपोर्टिव आइडियाज है, क्योंकि टीम हमेशा बनती उन्हीं के साथ है और उसी बात के लिए जब कॉमन इंटरेस्ट एक साथ मैच करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। टीम की जो बेसिक नीड्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम पढ़ते आए हैं, तो आपके लिए उसमें कुछ अलग से नया जोड़ने की और करने की बात नहीं है। आपको वही सारी चीजें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए
जो आपके साथ काम आ रहे हैं, या जो जिस मोटो को, जिस लीडरशिप को लेकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जितना हेल्पफुल आपके आइडियाज हो सकते हैं, या जो आपके टीम मेंबर्स के व्यूज हैं, जो आपके मोटोज हैं, जो आपके गोल्स हैं, और जो आपका टारगेट इंटरेस्ट है, उसके ऊपर ध्यान दें। ओके सर, थैंक यू Students, सर। okay, any other student having the doubt, or they can ask the question from our guest. किसी और स्टूडेंट को अगर कोई और आपका पॉइंट पूछना है लीडरशिप पर, इनोवेटिव लीडर, और एनी फैकल्टी मेंबर आल्सो, they can also ask to our guest. Okay, I think after our this students and the faculty, their doubts has been cleared. So I propose on the behalf of IMT College of Law, I propose a vote of thanks. It was the wonderful session for the students and the faculty members. Our learned speaker has rightly given the importance of innovation in leadership. He has clearly explained what is the innovative leadership, how it can be helped, how it can be helpful in the today's scenario where the new venture, new entrepreneurship, and new concept has been generated. Now this we have to create the jobs, not a job. We have job creator has to be there, not a job seeker. This concept has been there, and this concept led to the startup in the our country. Okay, thank you very much. Yes. Hello. Hello. हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है हमारा सर कि सर ने बात बोली सर मैनुअल की। हाँ सर, एक बार आप प्लीज मैनुअल बता दो सर, टीम बनाने के लिए क्या मैनुअल हो सकते हैं सर? मैंने आपको मैनुअल के लिए नहीं बोला था, है ना। हमने बोला था कि उसके लिए कोई अलग से मैनुअल की जरूरत नहीं होती है। एक टीम बनाने के लिए जो आमतौर पर बिहेवियरल साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो साइमन वेबर की शुरू से थियरी आती जा रही है, जिसमें हम अपनी हायरार्की तय करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले एक इंटरेस्ट गोल फिक्स करते हैं और उस पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपने टीम मेंबर्स के साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ तय करते हैं। जैसे सपोज करिए आप एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की बात करें और ऐसा कोई लॉ फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग से एक इनोवेटिव आइडिया है, उसके लिए अलग से बनाने की कोई खास जरूरत नहीं। आपको उसी रूप में बनाने हैं जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हम समझते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके कलीग्स के बीच, आपके जो पार्टनर्स एंड द कॉर्पोरेटर्स हैं, जो विल विशेस हैं, उनके साथ आपका एक फिक्स टारगेट ग्रुप होना चाहिए। जैसे आप ले सकते हैं आपकी सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच नॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल ब्रेकेबल होना चाहिए, एक प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन का होना चाहिए। साथ ही साथ टीम के सारे मेंबर्स का एक ही मोटो होना चाहिए, और वो कॉमन मोटो ये होना चाहिए कि जिसके लिए आपने वो टीम बनाई है, जिस उद्देश्य के लिए उसको पूरा करने के लिए आपने बनाया है, यू हैव टू अचीव दैट वे इन द प्रॉपर डिसाइडेड मैनर। क्योंकि जब आप टीम बनाते हैं और कोई काम करने चलते हैं तो उसमें कुछ पहले से डिसाइड होता है कि इन विच वे और बाई विच इन विच कंडीशंस वी हैव टू गेट आवर टारगेट। तो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप जो टीम बनाते हैं वो आम ही है, उसके लिए कोई मैनुअल्स मैंने आपको नहीं बताया था। मैंने ये कहा था कि उसके लिए अलग से मैनुअल बनाने की जरूरत नहीं होती है। ओके आई सर। थिंक इट्स क्लियर अरुण। यस सर। सर एक अलग से सर थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है सर। अगर मान लीजिए सर हम कोई लॉ फॉर्म में ज्वाइन कर रहे हैं और उसमें कई सारी टीमें होती हैं और हमारे टीम लीडर होते हैं सर उसमें, तो टीम लीडर सर हमारी लॉयल नहीं है या मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, तो उसके लिए सर हमें क्या करना चाहिए सर? देखो आपके क्वेश्चन मिक्सअप है थोड़ा बेटा।
आप अरुण जी पहले तो ये ध्यान रखिए कि लॉ फर्म में ज्वाइन करने का मतलब आप टीम नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और फिर लॉयल्टी भांपने के लिए आप फिर उस लॉ फर्म के साथ आप सुटेबल नहीं फील हो करेंगे कभी भी। यस सर। क्योंकि अब जब आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आपकी लॉयल्टी वहां पे है या नहीं, या वो आपके प्रति लॉयल है कि नहीं, ठीक है, या आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल हो सकते हैं या नहीं, है ना। आपने यही लॉयल्टी वर्ड यूज किया था ना, या कुछ और कहा यस था? सर, मैं से हम्म। यही। हाँ, तो आपके टीम लीडर्स हैं या टीम पार्टनर्स या टीम मेंबर्स जो हैं, मैंने पहले ही बताया कि वो टीम आपको अलग से मैनुअल की जो जरूरत वाली बात मैंने कही, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आप कहीं भी कोई टीम बना रहे हैं, कोई संगठन बना रहे हैं, कोई दल या टोली तैयार कर रहे हैं, तो अपनी टोली के साथ अगर आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, परस्पर समझ नहीं है, एक खास जो टारगेट है आपका, क्योंकि हर टोली हर टीम का एक पर्टिकुलर टारगेट होता है और एक पर्टिकुलर वे होता है जिससे कि उस टारगेट को हम अचीव करते हैं। अगर टीम मेंबर्स में आप सपोज जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि मैं अगर कोई लॉ फर्म ज्वाइन करता हूं और वहां पे लॉयल्टी एंड ऑल द थिंग, तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन ही बिगड़ गया ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि बाकी टीम मेंबर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेटिव नहीं है, कंफर्ट नहीं फील कर पा रहे हैं, और एक जो कंफर्ट जोन बनाना चाहिए काम करने के लिए, वो कल्चर के लिए, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत माना जाता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज द मिनिमम शुड बी कॉमन, तो ये नहीं अगर डेवलप हो रहा, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वैसे किसी टीम या लॉ फर्म को आपको ज्वाइन करने से एज ए इंडिविजुअल एंड इन योर कैरियर यू विल गेट एनीथिंग मोर, आपको कुछ बेहतर प्राप्त होगा। साथ ही साथ मुझे नहीं लगता कि इस तरह से अगर कुछ लोग टीम में हो तो फिर वो टीम काम कर पाएगी, या फिर आप उसमें से कुछ बेहतर उसके टारगेट के लिए कर पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। Okay, I think the doubts has been clear. Now I just wind up this session. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you, Thank you, everybody. Dr. Sudhakaran. Thank you for the IIC, MT College of Law. Thank you all. Thank you, students and faculty. Thank you all. Thank you, sir.